Hello, students, and welcome in the online session of Class 6 Science, Chapter 7 Getting to Know the Plants. This is the third video of this lesson. In the previous videos, we have covered the topics, the different types of plants like herbs, shrubs, trees, climbers, and creepers. Then, in the second video, we have covered the topic leaves and the different parts of the leaf as well as the venation, that means the design which is made by the veins on the leaf. Now let us find out what we are going to cover today in the video session. So today we will do photosynthesis, testing the starch with the iodine solution, then roots, the functions of the roots and the different types of roots present in the plants. Now let's start with the first topic, that is photosynthesis in plants. Now students, this is a new term to you. As you all know that the plants are green in color. The leaves of the plants, they are generally green in color, and we have discussed that the green color leaves of the plant, they have a green color pigment present in them which is called the chlorophyll. This is already told to you, okay? So this chlorophyll has a very important role. Now, you all know that plants can make their food. Okay, we humans also cannot make our food. We are just cooking the food which we get from the plants. Okay, we get fruits, we get vegetables from the plants, and using those vegetables, we just cook the food. But we cannot make the food. Food is only made by the plants, and in the plants also the main part which is making the food is the leaf. Okay, so green color leaves can make the food in the plants. Okay, this you have to remember that the green color leaves only can prepare the food using sunlight, chlorophyll, water, and carbon dioxide. Means when the plant prepares the food, then what things are needed? So the first thing is sunlight. They can only prepare the food in the presence of sunlight. Then they need chlorophyll, which is the green color liquid or the pigment present in the leaves. Then they need water and they need carbon dioxide gas also. Okay, so why carbon dioxide gas is absorbed in the plant? Because plants use this gas to make the food. Okay, so this process of preparation of the food by the plants is known as photosynthesis process. Okay, photo means light and synthesis means to prepare, to make. So when the plants make the food in the presence of sunlight, then the process is called photosynthesis. Okay, so I'll repeat one more time for you that photosynthesis is the process in which the plants make the food in the green leaves using sunlight, chlorophyll, water and carbon dioxide. Students, photosynthesis वो प्रोसेस होता है जिसमें कि plants फूड प्रिपेयर करते हैं, खाना बनाते हैं, खाना इन द सेंस दे मेक ग्लूकोज, दे मेक शुगर्स। तो वो फूड प्रिपेयर करते हैं और वो फूड कहाँ प्रिपेयर होता है? फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन द ग्रीन लीव्स। ठीक है, हरी कलर की जो पत्तियाँ होती हैं उसमें ये खाना प्रिपेयर किया जाता है यूजिंग, क्या क्या इसमें यूज़ होता है? सनलाइट का यूज़ करते हैं, क्लोरोफिल का यूज़ होता है, वाटर का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, so this process by which the food is made in the green leaves of the plant is called the photosynthesis. Okay, they use this food to get energy. Okay, now this food is made in the plants. In the diagram also you can see here is the sun from which the sunlight is received by the plant. So sunlight plus CO2 plus water and plus this green color pigment which is present in the plant. When they combine together in the leaves, then the food is prepared. Okay, so the food prepared is glucose. Okay, the food which is prepared in the plants is glucose or the sugar. Glucose is a type of sugar, and after the food is made, the plants release one of the gas, एक गैस और एक एक्स्ट्रा जो है फूड के साथ बनती है प्लांट्स में, एंड दैट गैस इज नोन एज ऑक्सीजन. Okay, so plants release oxygen after photosynthesis. Photosynthesis
होने के बाद प्लांट्स में ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर रिलीज की जाती है, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फाइन। नाउ दिस फूड विच इज मेड इन द प्लांट इज यूज्ड टू गेट एनर्जी, ठीक है। प्लांट जो है इस फूड को यूज करेगा और अपनी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जिससे कि वो बाकी की एक्टिविटीज कर सके। नाउ ऑल द फूड इज नॉट कंज्यूम्ड बाय द प्लांट, ठीक है, सारा फूड कंज्यूम नहीं होता है। तो जो एक्स्ट्रा फूड बचता है, द एक्स्ट्रा फूड विच इज लेफ्ट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। लाइक व्हेन वी प्रिपेयर फूड इन आवर हाउस, द एक्स्ट्रा फूड विच इज लेफ्ट इज kept in the refrigerator. Okay, so in the same way, when the plants make the food, some of the food they use to get energy and the extra food is stored in the parts of the plant, ठीक है। वो एक्स्ट्रा फूड जो है प्लांट के पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में स्टोर हो जाता है। अब ये जो स्टोर होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, क्योंकि प्लांट ने कौन सा फूड बनाया था, प्लांट्स हैव मेड ग्लूकोज, लेकिन अब ग्लूकोज जो है स्टोर नहीं होता है। सो दिस ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड टू स्टार्च, ग्लूकोज जो है पहले स्टार्च में कन्वर्ट होता है एंड देन स्टार्च इज स्टोर्ड इन द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। Okay, so if question come that food is stored in the plants in the form of dash, so what you will write, you will write starch. Okay, the food which is made in the plants is stored in the form of starch. Starch is also a carbohydrate, ठीक है, लेकिन वो ग्लूकोज बनाते हैं और वो ग्लूकोज फिर स्टार्च में कन्वर्ट होता है एंड स्टार्च के फॉर्म में फूड जो है वो स्टोर होता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। और ये पूरा प्रोसेस होने के बाद ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। खाना जब बनाते हैं तो ग्लूकोज बनने के साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी बनती है और उस ऑक्सीजन गैस को प्लांट्स जो है वो बाहर रिलीज कर देते हैं फ्रॉम द लीव्स। ओके, आई हैव टोल्ड यू दैट लीव्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं जहाँ से गैसेस जो है अंदर आती हैं बाहर जाती हैं। CO2 भी इसी होल्स से अंदर आती है एंड ऑक्सीजन जो प्लांट की बॉडी में बन रही है वो भी इन्हीं होल्स से बाहर चली जाती है, ठीक है। So the food prepared by leaves ultimately gets stored in different parts of the plant, ठीक है। जो एक्स्ट्रा फूड होगा वो बाकी के प्लांट्स के पार्ट में स्टोर हो जाएगा, जैसे कि रूट में हो जाता है, वेजिटेबल्स के फॉर्म में हो जाता है, हम जो खाते हैं दैट इज ऑल द एक्स्ट्रा फूड विच इज मेड बाय द प्लांट्स। द स्टेम सप्लाइज द लीफ विद वाटर। ओके, ये आपने पढ़ लिया है कि रूट्स जो हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। देखो यहाँ यू कैन सी इन द डायग्राम द वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स। अब ये जो वाटर है ये थ्रू द हेल्प ऑफ स्टेम इट गोज अप, सो स्टेम हेल्प्स इन द upward movement of water. Then from here the water is transported to each and every branch and each and every leaf of the plant. The leaf uses the water to make the food, right? जैसे अभी आपने देखा कि कौन कौन सी चीजें लगती हैं photosynthesis के लिए। Sunlight is required, water is required. So water, from where the water is coming? Water is coming from the roots. Okay, and then stem transports it to all the parts, then leaf will use the water to make the food. And you all have learned about transpiration also, that the leaves also lose the water in the form of water vapors, and this process is called transpiration, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो ब्लू colored arrows are showing that the water is evaporating from the leaf surface. लीफ के सरफेस से पानी जो है इवेपोरेट होता है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। फाइन। So this is all about the photosynthesis process. I hope the photosynthesis process is clear. Okay, so what is photosynthesis? Photosynthesis is the process in which the plants make the food in the green leaves using sunlight, chlorophyll, water and CO2, and the extra food which is left in the plant body is stored in the form of starch. And after photosynthesis, the gas which is released is oxygen. And for photosynthesis, plants use CO2 gas, carbon dioxide gas, sunlight, water, and chlorophyll. Okay. Now, the next slide is testing a leaf for starch. Now, we have learned that the extra food which is left in the plant body is stored in the form of starch. So, can we test that whether starch is present in the leaf or not? ठीक है, क्या हम ये पता कर सकते हैं कि प्लांट के लीफ में या प्लांट के अदर पार्ट्स में स्टार्च है कि नहीं? तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, ठीक है। कैसे पता करें कि स्टार्च है कि नहीं है? सो टेस्ट ये होता है कि स्टार्च को जब हम आयोडीन, स्टार्च के ऊपर जब हम आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन जो होता है ना एक पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है, देखो यहाँ पे आपको ड्रॉपर में दिख रहा होगा, यू कैन सी इट, एक पर्पल कलर का सोल्यूशन लिक्विड होता है। अगर हम उसे स्टार्च के ऊपर डालते हैं
तो स्टार्च का कलर जो हो जाता है ना वो जो आयोडीन का कलर है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। ठीक है, पर्पल से ब्लू ब्लैक शेड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वो ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है दैट मीन्स कि स्टार्च प्रेजेंट है। और अगर आपने स्टार्च के ऊपर आयोडीन डाला और उसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, इसका मतलब कि स्टार्च एब्सेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक एक्टिविटी की पिक्चर्स देख रहे हो जिसमें सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इन द फर्स्ट पिक्चर लीफ इज बॉइल्ड इन वाटर। ठीक है, एक बॉइलिंग वाटर में हमने क्या किया है, ग्रीन कलर की लीफ डाली है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। राइट, सो अ लीफ इज फर्स्ट ऑफ ऑल बॉइल्ड इन द वाटर। ठीक है, ये गैस जला दिया, बर्नर इज ऑन नाउ। अब क्या किया गया है कि उसको यहाँ बॉइलिंग वाटर से निकाल के फिर उसको इथेनॉल में बॉईल कर रहे हैं। ठीक है, इथेनॉल भी एक लिक्विड होता है, तो उस इथेनॉल में उस लीफ को बॉईल कर रहे हैं। बॉईल इसलिए कर रहे हैं ताकि उसमें जितना भी क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर का पिगमेंट, वो खत्म हो जाए। ठीक है, वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो बॉईल करने से आप देखोगे कि ये जो ग्रीन कलर है ये कैसे येलो में कन्वर्ट हो गया, ब्राउनिश हो गया है, मतलब सारा क्लोरोफिल क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आपने यहाँ इथेनॉल में बॉईल किया, फिर उसको निकाल लिया। उसके बाद में हम इसको वाटर से एक वॉश देंगे और उसके बाद में हमने उसको लीफ को ड्राई किया। ड्राई करने के बाद अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि उसके ऊपर ये पर्पल कलर का आयोडीन का सॉल्यूशन डाला जा रहा है। ठीक है, IODINE, आयोडीन एक सॉल्यूशन है जिससे कि हम स्टार्च को टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो आयोडीन का सॉल्यूशन जब आप डालोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है। ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा, जिससे ये पता चलता है दैट स्टार्च इज प्रेजेंट इन द लीफ। स्टार्च जो है वो प्रेजेंट है, क्योंकि लीफ में भी जो एक्स्ट्रा फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, तो ये टेस्ट हम स्टार्च को किससे टेस्ट कर सकते हैं, वी कैन टेस्ट इट बाय यूजिंग आयोडीन सॉल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रूट्स। अभी हमें रूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे पिक्चर पे देख सकते हो कितना सारा रूट्स दिखाया गया है डायग्राम में। राइट, ये ग्राउंड का लोअर पार्ट है, अंदर का पार्ट है जिसमें इतना सारा ये सब, दीज ऑल आर द रूट्स विच यू कैन सी हियर। सो रूट वो पार्ट होता है, इट इज दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज अंडर द ग्राउंड। प्लांट का वो पार्ट जो ग्राउंड के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड द रूट। And what is the function of the root? Now you all know that root absorbs the water and the minerals from the soil. Root क्या करती हैं? Roots सॉइल से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं, ये एक फंक्शन। दूसरा फंक्शन ये होता है कि रूट्स होल्ड द प्लांट स्ट्रेट। अगर रूट्स नहीं होंगी तो प्लांट ऐसा सीधा खड़ा नहीं रह सकता है, तो रूट्स होती हैं जो प्लांट को स्ट्रेट जो है होल्ड करके रखती है। ठीक है, अगर रूट्स का सपोर्ट नहीं होगा तो प्लांट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट। ठीक है, तो ये फंक्शन है रूट का कि इट हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड स्ट्रेट एंड इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। नाउ नेक्स्ट इज वी हैव टू सी वन ऑफ द एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में आपकी बुक की ही एक्टिविटी है। सो लेट्स सी व्हाट इज इन द एक्टिविटी। सेलेक्ट टू प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड। ठीक है, आपको दो एक से प्लांट जो है सेलेक्ट करने हैं एंड टेक केयर दैट द रूट्स डू नॉट ब्रेक। तो आपको क्या करना है, दो एक से प्लांट्स लिया आपने और रूट्स के साथ उनको ज़मीन में से निकाल लेना है। रूट्स ब्रेक नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। रूट्स के साथ उनको आपने निकाल लिया। अब देखो ये पॉट ए है और ये पॉट बी दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट। आपने क्या किया, एक प्लांट को पॉट नंबर ए में लगा दिया है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो, और इस प्लांट में रूट्स भी उसके साथ हैं। ठीक है, लेकिन जो दूसरा प्लांट आपने लिया था उसकी क्या किया आपने, उसकी रूट्स कट कर दी हैं और फिर वो स्टेम जो है उसको आपने इस तरह से पॉट में लगा दिया। अब ये पॉट ए है, पॉट बी है। पॉट बी वाले प्लांट में रूट्स नहीं है, पॉट ए वाले प्लांट्स में रूट्स हैं। अब आप इसको क्या करना है, रोज आपको इसमें पानी डालना है, दोनों ही प्लांट्स में, दोनों ही पॉट्स में आप वाटर रेगुलरली डालोगे। एंड देन यू विल ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक। और एक वीक के बाद आपको देखना है तो कौन सा प्लांट आपको जो है हेल्दी लगेगा। ठीक है, तो आई थिंक आंसर आप सबके पास है कि जो प्लांट जिसकी रूट्स हैं दैट प्लांट विल बी हेल्दी। पानी आप दोनों में डाल रहे हो, राइट, लेकिन वो पानी को एब्सॉर्ब करने के लिए प्लांट्स नीड द रूट्स। राइट, तो जो पॉट ए में प्लांट है उसमें रूट्स है, तो रूट्स विल एब्सॉर्ब द वाटर एंड दिस प्लांट विल रिमेन हेल्दी। लेकिन जो सेकेंड प्लांट है जो कि पॉट बी में है विच डू नॉट हैव द रूट्स हियर, तो दैट प्लांट कैनॉट एब्सॉर्ब द वाटर, तो उसको पानी ही नहीं मिल रहा, उसकी रूट्स ही नहीं है,
तो क्या होगा, वो प्लांट अनहेल्दी रहेगा और वो इट विल डाई, वो सूख जाएगा और इट विल डाई। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से ये कंक्लूजन निकलता है दैट रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल फॉर द प्लांट्स। रूट ही वो पार्ट है जो कि वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है एंड विच कीप्स द प्लांट हेल्दी। ठीक है, अगर प्लांट को पानी ही नहीं मिलेगा तो प्लांट जो है वो हेल्दी नहीं रह सकता है। नाउ एक अनदर एक्टिविटी हमें देखना है दैट टेक टू कटोरीज और बाउल्स। दो बाउल लिया आपने या कटोरी बोलते हैं जिसको, प्लेस सम वेट कॉटन इन देम। ठीक है, दोनों में ही आपको कॉटन रखना है और कॉटन को गीला कर देना है थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ आपको डायग्राम में दिख रहा है। पुट 3-4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन द अनदर। अब आपने एक बाउल में क्या रखी, इस तरीके से ग्राम सीड्स रखी हैं और दूसरे में क्या रखी है, मेज की सीड्स, मक्का के दाने रखे हैं। नाउ कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। अब आपको दोनों ही बाउल में क्या करना है, रोज थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल करते रहना है उस कॉटन के ऊपर अंटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट्स। और आप देखोगे थोड़े दिन में इस तरह से, 1-2 दिन में ही ऐसे स्प्राउट्स निकल जाएंगे। ये दिख रहा है आपको वाइट वाइट कलर के, सो इस तरह से स्प्राउट्स निकल जाएंगे। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन। अब एक वीक के बाद आप क्या करोगे, आप इन ये स्प्राउट्स जब निकल जाएंगे, नाउ यू विल ट्राई टू सेपरेट दीज सीड्स फ्रॉम द कॉटन। ये स्प्राउट्स जो निकल आए हैं, तब आप धीरे धीरे सीड को ना इस कॉटन से अलग करने की कोशिश करोगे। सो वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स। ठीक है, क्या वो इजीली सेपरेट हो पाएगा? वाई कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, राइट, वी डग देम आउट। सो हाँ, आप देखोगे कि जब आप इन स्प्राउट्स को कॉटन से अलग करने की कोशिश करोगे तो आप बहुत इजीली इनको अलग नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो स्प्राउट्स हैं, ठीक है, ये जो स्प्राउट्स निकले हैं ना, ये उस कॉटन में फंस जाएंगे, होल्ड कर लेंगे वहां पे, और फिर आपको बहुत ही धीरे धीरे उसको वहां से जो है सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे क्लियरली ये पता चलता है कि रूट्स जो हैं, दे हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। जिस तरह से यहाँ पे ये छोटी छोटी जो रूट्स निकल आई हैं, वो कॉटन को पकड़ लिया है, उन्होंने कॉटन को होल्ड कर लिया है। ठीक है, उसी तरह से जब रूट्स निकलती हैं छोटे बेबी प्लांट्स में सॉइल में, तो सॉइल में भी वो रूट्स जो हैं, वो बहुत ही फर्मली सॉइल के पार्टिकल्स को पकड़ लेती हैं और वो बहुत ही इजीली हम उसे हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या है कि रूट्स एंकर द प्लांट्स टू द सॉइल। रूट्स ही होती हैं जो प्लांट को सॉइल में अटैच करती हैं, जो प्लांट को सॉइल में स्ट्रेट खड़ा रहने के लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, रूट्स उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। रूट्स क्या करती हैं, सॉइल के पार्टिकल्स को होल्ड करके रखती हैं। जैसे यहाँ पे कॉटन के पार्टिकल्स को होल्ड किया है इन्होंने, ऐसे ही रूट्स जो हैं वो सॉइल के पार्टिकल्स को होल्ड करके रखती हैं। तो प्लांट जो है सीधा खड़ा रहता है ओनली बिकॉज ऑफ रूट्स। फाइन, सो रूट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। नाउ नेक्स्ट जो है हमें पढ़ना है अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स। रूट्स भी बहुत अलग अलग तरह की होती हैं। आपको यहाँ पिक्चर में यू कैन सी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स। ठीक है, तो जो पहला टाइप होता है दैट इज टैप रूट्स, और जो दूसरा है वो है फाइबरस रूट्स। ठीक है, अब आप देखोगे ये जो फर्स्ट पिक्चर है दिस इज ऑफ टैप रूट, और ये जो सेकंड पिक्चर है ये फाइबरस रूट की है। तो अभी आप देखो, देखने से ही डिफरेंस जो है थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। टैप रूट में क्या होता है कि देयर इज वन मेन रूट। देखो यहाँ पे आपको सेंटर में एक मेन रूट नजर आ रही है, एंड दिस मेन रूट हैज स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस। फिर उस मेन रूट से बहुत सारी ब्रांचेस जो है निकल रही है, और फिर वो ब्रांचेस के भी और छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही है, लेकिन यहाँ पे एक मेन रूट है बीच में। ठीक है, तो इस तरीके की जो रूट सिस्टम होती है उसको हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम, टैप रूट बोलते हैं, जिसमें कि एक मेन रूट है और साइड में जो छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं उनको हम बोलते हैं लेटरल रूट्स। लेटरल मतलब जो साइड में निकल रही हैं, दे आर लेटरल रूट्स। ये वाली जो है ये लेटरल रूट्स हैं। ओके, सो ये जो रूट है इसको हम बोलते हैं टैप रूट। फाइन, जैसे रेडिश है, कैरेट है, वो सब टैप रूट्स हैं। देन जो सेकेंड टाइप है वो है फाइबरस। तो आप यहाँ देखोगे कि इन द फाइबरस रूट सिस्टम में कोई सेंट्रल, कोई मेन ऐसा रूट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स हैं जो कि एक ही पॉइंट से देखो यहाँ से निकल रही हैं। ठीक है, सो इन द फाइबरस रूट्स देयर इज नो मेन रूट, कोई मेन रूट नहीं है, बट ऑल द रूट्स लुक सिमिलर एंड अराइज फ्रॉम द सेम पॉइंट। बट सारी ही जो रूट की ब्रांचेस हैं वो एक ही जगह से निकल रही हैं, एंड दे ऑल लुक सिमिलर, सब एक सी लग रही हैं और सभी एक मेन जगह से निकलती हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द फाइबरस रूट।
ओके, सो कौन सी दो तरह की पढ़ी हमने? वन इज टैप रूट, अदर वन इज फाइबरस रूट. इन द टैप रूट देयर इज वन मेन रूट from where the other lateral roots arise, from where the branches of the roots arise, which are called the lateral roots. And fibrous roots में क्या होता है कि there are many roots which are similar to each other and all of them arise from the same point. सारे roots एक ही जगह से निकल रही हैं, तब उनको हम बोलते हैं फाइबरस रूट्स. ओके, आप देखोगे ग्रास में, घास में इस तरह की रूट्स होती हैं फाइबरस, लेकिन जो बहुत लंबे लंबे ट्रीज होते हैं उनमें इस तरह की टैप रूट्स होती हैं. फाइन. ये जो टैप रूट होती है ना, ये बहुत अंदर ज़मीन तक जाती है और ये बड़े बड़े ट्रीज को ना सपोर्ट प्रोवाइड करती है. लेकिन जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं दे जनरली हैव फाइबरस रूट सिस्टम, उनमें फाइबरस रूट्स होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज समरी. सो लेट्स सी व्हाट वी हैव लर्न टुडे. तो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है. फोटोसिंथेसिस इज दैट प्रोसेस इन विच द ग्रीन प्लांट्स मेक द फूड using water, sunlight, chlorophyll and CO2 gas. Fine. And after the photosynthesis, the gas released is oxygen. Then you have seen that how the starch is tested. So we can test the presence of starch with the help of iodine solution, which is a purple color solution. And starch gives blue black color with iodine. Then you studied about roots. Okay, then root is the part which is present below the ground. Then functions of the roots. So roots, what they do, they help to absorb the water and minerals, and they also support the plant to stand straight. Then you have studied about different types of roots. So here also you can see tap root system and fibrous root system. Fine. So you can see here in the tap root there is one main root from where the small branches arise, which are called the lateral roots. यहाँ पे आप देखोगे कि सेंटर में एक मेन रूट है जिसमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, तो ये होता है टैप रूट. एंड फाइब्रस रूट में आप देखोगे कि एक ही जगह से बहुत सारी सेम सेम टाइप की रूट्स निकल रही हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं फाइबरस रूट्स बोलते हैं. ठीक है, तो ये सब हमने स्टडी किया है आज के वीडियो सेशन में. सो we'll meet in the next session in which we will study about the flowers, okay, and the different parts of the flower. Till then, all of you read the lesson, do complete your notebooks, your all pending work, and stay home and stay safe.